Hi friends, good evening. So welcome to CA Final Indirect Tax by CA Meeta Mangal, and we are doing chapter 12 part 2, Payment of Tax part 2. We are done with TDS. We are recording start कर दिया मैंने. We are done with TDS and now we'll start with TCS. Am I clear? Section 52. Section 52 TCS. Yes or no? Please tell me. Are you? I hope all with me. Sound, camera, all perfect? Okay. Let's start with TCS. Tax collection at source. Tax collected at source. I hope you people are getting a point. बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. TCS refers to tax which is collected by electronic commerce operator. तो बेसिकली TCS पिक्चर में कब आता है? जब इको पिक्चर में आता है. आई होप यू नो व्हाट इज इको. इको इज नथिंग बट ये हमारा जो अमेजोन फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है? ये इको ही है. ये सब क्या है? ये इको ही है. एज एन मैं गुड्स इनको देती हूँ, और मतलब बेसिकली जो बायर हैं इनके पोर्टल पे आके गुड्स ऑर्डर करते हैं, और फिर मुझे पता चलता है कि मेरा गुड्स ऑर्डर हुआ है, तो मैं डिलीवर करवाती हूँ, और अमेजोन की पब्लिक आके मेरे पास आके गुड्स ले जाती है. गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर कॉल्ड एज इको. इनको क्या कहा जाता है? इको कहा जाता है. क्या कहा गया है? TCS refers to tax which is collected by ICO when a supplier supplies, yeah, that's a platform basically. When a supplier supplies taxable goods, अगर taxable goods taxable goods and services दे रहे हैं, okay, taxable goods and services दे रहे हैं through its portal, and the payment for that is supplied is payment for that is that supply is collected by इको. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इको ऐसा नहीं कि आपका गुड्स इको के थ्रू गया है तो बाय डिफॉल्ट TCS आएगा, नहीं. जहाँ पे पेमेंट इज कलेक्टेड बाय इको, जहाँ पे पेमेंट इज कलेक्टेड बाय इको, देन दैट इको विल कलेक्ट टैक्स. एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स referred as Amazon, Flipkart, etc. operating in India. This operators displays on their portal products as well as services which are actually supplied by some other person to the consumer. The goods or services belonging to other suppliers are displayed on the portal of the operator, and consumers buy such goods or service through this portal. On placing the order for a particular product or service, the actual supplier supplies the selected product or service through the operator to the consumer. Am I clear? The price concession for product or service is credited by the operator, that is ICO, from the consumer. और ICO क्या करता है? मेरा अपना कमीशन रख के मेरा बैलेंस पैसा मुझे दे देता है. The commission, the price or concession for the product or service is collected by the operator from the consumer and passed on to actual supplier after the deduction of commission and incidental expenses mutually agreed upon. Am I clear? जो भी हमारे बीच में डील हुआ होता है उतना वो पोर्शन काट के बाकी पैसा मुझे दे देता है. Am I clear? Am I clear? So what is electronic commerce? Electronic commerce means supply of goods, supply of services, supply of goods and services through what? Including digital product over digital network. Am I clear? E-commerce operator कौन होता है? Any person who owns, who operates, who manages this platform. Clear? Now, important point. Who is liable to collect TCS? Every eco, not being an agent. Agent नहीं होना चाहिए. Not being an agent has been mandated to collect TCS on the net value of taxable supplies. Net का मतलब सप्लाईज नेट ऑफ रिटर्न इफ एनी. कभी कभी क्या होता है, मेरा माल बिका, फिर अगर मेरा माल वापस आ गया तो 4 गया, 1 वापस आया, तो नेट 3 हो गया. मतलब मेड थ्रू इट बाय सप्लायर्स वेयर इको कलेक्ट्स द कंसिडरेशन. तो पहली बात, TCS पिक्चर में कब आता है? जब इको गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, and where ICO is collecting the concession, and ICO should not act as an agent.
तो अगर ये है, तो अगर इंट्रा है तो 1/2% CGST एंड 1/2% SGST, और अगर इंटर है तो 1%. Am I clear? Am I clear? Any issue till here? Yes? Further, the power conferred on the e-commerce operator to collect tax at source without prejudice to other modes of recovery from operator. मतलब by default eco will collect TCS. नहीं, इसलिए बोला कि इको एज एजेंट नहीं होना चाहिए. इको एज एजेंट नहीं होना चाहिए. Am I clear? Not being an agent means that eco should not act as an agent of the supplier. Not being an agent means eco should not act as an agent of the supplier. तो वो अगर एजेंट होता तो वो भी तो कमीशन लेता कि नहीं लेता. तो अगर आप एजेंट हो तो आप इको नहीं हो, और आप इको हो तो आप एजेंट नहीं हो. गेटिंग मी? यस. Next, the power of eco is restricted only to the extent of the tax collection at source under circumstances specified. जहाँ जो बोला गया उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ क्या बोला है? एग्रीगेट वैल्यू किस पे? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एंड गुड्स एंड सर्विस ऐड होगा, उसमें रिटर्न माइनस हो जाएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेट मूव इट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 9(5) other than notified service under section 9(5) by all registered person through eco. अगर आप 9(5) के थ्रू सर्विस दे रहे हो, अगर आप 9(5) की सर्विस दे रहे हो by all registered person through operator. Am I clear? सेम सर्विस टू ऑल वाली बात नहीं आती मोहित. सर्विसेज भी तो होती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर. या HAT. Other than notified services under section 9 subsection 5 by all registered person through operator. Am I clear? तो रेट क्या है? 0.5 CNS and 1% IGST. Am I clear? Am I clear? तो 9(5) में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन एंड हाउस कीपिंग. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फिर जो इको ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो उसको विद इन 10 days आफ्टर एंड ऑफ द मंथ, अगर सपोज जनवरी मंथ का है तो 10 फरवरी तक आपको डिपॉजिट कर देना चाहिए. Am I clear? फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट बाय इको, ये सब रिटर्न वाले चैप्टर में आएगा, फिर पढ़ लेते हैं. एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड बाय इको, contain details of outward supply of goods and or services affected through it, including supplies returned through it and amount collected it as TCS during the month within 10 days after end of each month. मतलब आपको 10 days में पैसा जमा भी करना है और स्टेटमेंट भी इशू करना है. Additionally, yeah, as TDS, correct. Additionally, the ECO is also mandated to file annual statement on or before 31st December following the end of the financial year. जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उसके एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31st दिसंबर तक एनुअल रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है. The commissioner has been empowered to extend due date for furnishing the monthly and annual statement. Am I clear? Am I clear? Next, notice to the operator. An officer not below the rank of deputy commissioner can issue notice to an operator asking him to furnish details relating to volume of goods or service supplied, stock goods lying in warehouse, etc. The operator is required to furnish within 15 working days. I know, Gauri. Are you उस पॉइंट पे? वेट, कुछ कुछ चीज़ें ना क्वेश्चन करके समझ में आती है, तो डोंट वरी. वो कुछ पॉइंट्स हम गौरी क्वेश्चन करके लेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है कि किस केस में अदर देन 9(5) वेयर बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ऑपरेटर. मैं क्लियर? और हमको पता है जब मैं 9(5) पढ़ती हूँ तो 9(5) याद है कि नहीं याद है? 9(5) याद है कि नहीं याद है?
HAT, housekeeping, accommodation, transportation. If supplier registered, FCM, unregistered, ECO. If supplier registered, FCM, unregistered, ECO. ऑलवेज इको. मुझे बताओ, अगर सप्लाई रजिस्टर्ड है तो पैसा कलेक्ट ही कौन करेगा? अगर सप्लाई रजिस्टर्ड है तो पैसा कलेक्ट ही कौन करेगा? सप्लायर. तो फिर यहाँ पे जब सप्लायर ही टैक्स पैसा कलेक्ट करने वाला है तो इको का यहाँ रोल ही नहीं आता है. यहाँ पे जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में फिर पैसा किसके पास आएगा? इको के पास आएगा, क्योंकि देन द डीलिंग इज फ्रॉम इको. समझा लॉजिक? इसलिए, क्योंकि बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे इको आता है, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, इन दैट केस फिर इको का रोल ही नहीं है. गॉट द पॉइंट गौरी? All got this point? तो यहां भी इको ही आएगा. Am I clear? अग्रीड इको हो सकता है, इको होगा ही, बट वहां पे टैक्स कौन पे करेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. अशोक, दोनों होंगे, मैं मना नहीं कर रही. अगर आज सपोज मेरा एक होटल है और मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे केस में आई विल बी पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट दो यू हैव बुक्ड माई होटल थ्रू इको. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दोनों होते ही है. अगर मैं 95 की बात करूं, दोनों होते ही है, पर वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. क्लियर? मैं वही तो कह रही हूँ अशोक, अग्रीड, मैंने मना नहीं कर रही, बट इन दैट केस इको की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो इको टीसीएस की बात नहीं करेगा. क्लियर? सरोज, सिर्फ 95 की बात हो रही है. 95 में इट इज ओनली थ्री सर्विसेज, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट. बाकी सब में सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, इट डज नॉट मैटर. अगर इको ने पैसा कलेक्ट किया है तो इको को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? क्लियर? क्लियर सरोज? तो इको को नोटिस जा सकता है फ्रॉम डेप्यूटी कमिश्नर. An officer not below the rank of deputy commissioner can issue notice to an operator asking him to furnish details of the volume of goods and services as well as क्या goods उसके warehouse में. Operator को within 15 working days notice के जवाब देना पड़ेगा. In case operator fails to furnish the information, besides being liable for penal action under section 122, it shall also be liable to penalty under section 20 rupees of 25,000. ये 25,000 जनरल पेनल्टी की बात करते हैं. किसकी? जनरल पेनल्टी का. मैं क्लियर? तो देखा जाए इको इतना ही है. इको क्या बोलता है, अगर आप अपना टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो किसका, गुड्स का या सर्विसेज का, थ्रू इको, जहाँ पे इको कंसेशन कलेक्ट कर रहा है, तो इको वहाँ पे आपसे टीसीएस टैक्स कलेक्ट एट सोर्स करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, और वो आपके कैश लेजर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एंड यू कैन यूज दैट अमाउंट टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स.
क्लियर? तो देखो बस इतना ध्यान रखना कि इको एजेंट नहीं होना चाहिए और इको को पैसा कलेक्ट करना चाहिए तो ही TCS आएगा. तो क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स इज सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम. डज ही फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ इको? आंसर करो. मेरा खुद का वेबसाइट है www.camitamangal.com. क्या मैं उस वेबसाइट की इको हूँ? नहीं, मैं उस वेबसाइट की इको नहीं हूँ. जब मैं उस वेबसाइट की इको नहीं हूँ तो फिर TCS की बात आती है क्या? नहीं. तो क्या लिखा है? मिस्टर एक्स विल कम अंडर as per definition of 244 and 25, Mr. X will come under definition of an eco. However, according to section 52, TCS is required to be collected on the net value of taxable supplies made through it by other suppliers. Am I clear? 52 कब आएगा? जब आपके प्लेटफॉर्म से कोई और माल बेच रहा है और आप उस केस में कंसेशन कलेक्ट कर रहे हो. In such case, when someone is selling their own product through a website, there is no requirement to collect TCS as per provision of this section. These transactions would be liable to GST on the prevailing rates. Am I clear? एग्रीगेट वैल्यू क्यों चाहिए आपको यहाँ पे? टोटल पे हाँ नहीं आएंगे. 95 वहां पे जहां पे सप्लायर इज रजिस्टर्ड पर्सन. करेक्ट. नेक्स्ट, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स. इन टर्न मिस्टर ए इज सेलिंग देम ऑन हिज ओन वेबसाइट अंडर हिज ओन बिलिंग. इस TCS इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सच सप्लाईज. आंसर करो. नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि वो सप्लायर को ही नहीं बेच रहा, वो खरीद के बेच रहा है. सी नो, अकॉर्डिंग टू 52, TCS is required to be credited on the net value of taxable supplies made through ICO by other suppliers. In this case, there are two transactions. Mr. A purchases goods from the vendors and those goods are sold through his own website. For the first transaction, GST is leviable and will need to be paid to vendor on which credit is available to Mr. A. सिंपल है. आज अगर मैं माल खरीद रही हूँ तो माल खरीदने पर जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया होगा उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा. मैं क्लियर? चल सेकेंड. हाँ, या अगर मेरी क्लासेस सी क्लब से उनके यहाँ जा रही देन इट्स इको. राइट. एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड बाय एंड नेट and not by other suppliers and there is no requirement to collect TCS. Am I clear? The transaction will act like normal. मतलब परचेज पे नॉर्मल टैक्स पे किया होगा उसका मुझे इनपुट टैक्स मिलेगा. सप्लाई पे मैं नॉर्मल टैक्स चार्ज करूंगी. एम आई वेरी क्लियर? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. बच्चे हैव यू जॉइन लेट? नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपने जितना सप्लाई किया और जितना रिटर्न हुआ उस महीने में उसका डिफरेंस को नेट कहा जाता है. एम आई क्लियर टिल ईयर? प्लीज कंफर्म. सेल्स लेस रिटर्न्स. करेक्ट. नेट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सेक्शन 52 क्लियर हो गया? तो वी आर डन विथ चैप्टर 12. Okay.